Hi everyone, very good morning to you. And if you show up on your, most of you people, if it's convenient to you, you can show up, switch on your videos. It'll be very nice to interact because we also get very less time to, see people live, and it will be wonderful. Yeah, thank you so much. Yeah, for this being there, Daneshji. And I would appreciate if most of you, come on the this thing video session for some time at least, if possible. It would be very nice. So thank you so much. So like today we are. This is everybody knows that you know has declared this 1st June as the Universal Global Parents Day and Universal Children's Day also. And this is just to celebrate the parenthood, and not only the parenthood but also endorse the sacrifices which we all, like all the parents, do in upbringing their children, and sacrifice their happiness, their life, their comforts, and their present, the most. And in that also, a happy child at the end of the day, and that's all, and without any selfishness in there. So, like a big round of applause. Can, if we are all there, let me know how many people are there. So big round of applause for the current parents and the parents who are there at the conception point, and also the ones who are planning parenthood, and also the children who are there. So big round of applause. So let me hear. Videos are on. Can we just start? हाँ हाँ भी आया हाँ हाँ ये ना 3 साइकिल पैकेज कंजम्पशन सर ये हम हार्ट बीट आते ना वो वाला उसको शेयर करो आपको हार्ट बीट वाला रिपोर्ट भेजता हूँ अभी भेजता हूँ आपको I will request rest हाँ of हाँ you to पैनल please go चलता on ही mute. रिपोर्ट भेजता हूँ हेलो Gunda Srinivas, हाँ could you please go on mute? सर So now as we all know that being a parent is a wonderful experience, and one of the most wonderful experiences we experience on the earth. So and wherein we not only live to struggle in the present, which is very important. We enjoy the present life, we feel the present life, and we feel that we are very close to one of the bounties of nature as a child, as then a child is there around. And also we continuously strive to make the life of the child better, meaningful, and so that this world and this planet at the end of the day becomes most beautiful place to live. Yeah. So all this, I would say, uh, you know uh, this all parenthood all begins with the small unit called the family. Do you all agree? Yeah. We all stay in the families. Can we think of staying without a family? Yes. Can we think of it? Dr. Archana, I would request you to please unmute yourself. It has gone mute. I think it automatically went okay. Is it now? I think it's okay. So, like, what we're saying, all begins with a small unit called the family, and it's important to realize the importance of the family, and it is very important then that we consider the health of the family, that is physical, mental, and also the spiritual health of the family, which is very important because we all today we all are here. आज हम लोग सब यहाँ पे हैं, और हम लोग फैमिली की वजह से सब लोग कहीं ना कहीं से, हम लोगों के रूट्स कहीं ना कहीं से फैमिली में आ रहे हैं, और फैमिली ने ही जो आज हम हैं, जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ. सो आई लव टू बी विद द चिल्ड्रन, लव टू बी विद द पीपल, and resolve their issues and make their life beautiful. So it is all the nurturance of my family, and not only my family, but the people, the society around me also, who have nurtured the good things, the education in me, and who have enhanced the boundaries of my mind to understand things better and make my life and others' life more meaningful and happy. So today, like, let us discuss what happens, like, the parenthood. Where does it begin?
parenthood begins right from the, when we are planning to be a parent, isn't it? Since this is a fertility chain, and listen, I would like your endorsement. Yes or no? You can put it your answers in the chat box. It will make it more interactive and important. So, so when we are there in the family, we start, our life from the family, and we see that the family takes care of our physical health, and how right from the childhood, right from the conception. So it's the psychological thoughts and the matter which a parent is thinking while planning a child is also important. And when we conceive, when the mother conceives the baby, the mental health, the psychological impact, uh, it gets stored default into the genes. So that is also very important. So parenthood starts 9 months earlier, before the infant enters the life. बच्चे पैदा होने से 9 महीने पहले से, और 9 महीने से भी और पहले से, जब पेरेंट प्लान करना शुरू करता है कि मेरा बेबी होगा, तभी से पेरेंटहुड स्टार्ट हो जाती है. और वाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज पेरेंट की जो मेंटल हेल्थ है, जो थॉट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थॉट्स है, वो सारे बच्चे के अंदर वो डेवलपमेंटल स्टेज में ही, अंदर कंसेप्शन से ही एम्बेडेड होने शुरू हो जाते हैं. एंड दैट विल टेक इट अप लेटर हाउ. तो लाइक अभी हम जब देखते हैं कि बच्चे का जो ये सब इंटर रिलेटेड होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ. So there are 5 stages, 5 categories of the child's development. I think we are all aware. जब बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, और जब इन्फेंट होता है शुरू में छोटा बेबी, एंड देन टॉडलर जो टॉडलिंग स्टेज पे घुटनों पे चलने आता है, और उसके बाद प्री स्कूल एज, जब वो स्कूल जाने से पहले वाली एज होती है, और एक अर्ली स्कूल एज. तो मोटा मोटी अगर हम बच्चे की डेवलपमेंट करें 12 साल तक, तो 5 कैटेगरीज होती है हम लोगों के पास में. और हर स्टेज की एक डिफरेंट ग्रोथ होती है, जिसमें कि हम फिजिकल ग्रोथ, 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. और हर स्टेज पे, न्यूबॉर्न की स्टेज पे, इन्फेंसी, टॉडलर, प्री स्कूल एंड अर्ली स्कूल, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में क्या, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट टू मॉनिटर. एंड उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ कैसे हो रही है. और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, जिससे वो कनेक्ट करता है दुनिया से अपने आप को. अब स्पीच के थ्रू वो कनेक्ट करता है, और कई बार बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो कनेक्ट करता है. तो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे उसकी ये डेवलप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्पीच. तो और 12-13 साल तक हमें बहुत क्लोज मॉनिटर करना पड़ता है. और कहीं भी अगर हमें लगता है कि डिलेड है कहीं पे भी ग्रोथ, जो कि हमें लग रहा है फिजिकल ग्रोथ, चलने में देर हो रही है या बोलने में देर हो रही है उसको, कि नॉर्मली बच्चा 1 साल के अंदर, 10 महीने में, कई बच्चे 1 से 1.5 साल, 10 महीने से 1.5 साल के बच्चे बोलने लग जाते हैं. लेकिन अगर नहीं बोल रहे, देन वी हैव टू कंसल्ट आवर पीडियाट्रिशियन, आवर डॉक्टर. एंड देन हमें उसको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, उसकी इंटेलिजेंस की कैसे वो कोई गलत, वो खतरे की चीजें, कोई चीज है गर्म है या कुछ गलत है, गिरने वाला है बेड से, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने पा रहा है कि नहीं करने पा रहा. तो सो मेनी थिंग्स हमें उसको देखनी है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और इंटेलिजेंस उसकी क्या है. तो अगर हमें कहीं पे भी हमें लग रहा है कि कोई कमी है, देन तब हमें अपने पीडियाट्रिशियन को हमें टाइम टू टाइम हमें उसको कनेक्ट करना ही होगा. सो then let's talk about maintaining the health of the family. जो हमारे, जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं, तो हम उसके अंदर उसकी मेंटल हेल्थ का कैसे कैसे हम ख्याल रखते हैं. फिजिकल हेल्थ के बारे में तो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आर देयर, पीडियाट्रिशियंस आर देयर, जो भी बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे बहुत कुछ. Since I am a psychologist, and let me tell about myself. I studied, I was born and brought up in Shimla. And then I did my research work in All India Institute of Medical Sciences, and then I took my training in King George Medical College, Department of Psychiatry. So I have worked closely with the psychiatrist, neurologist, pediatrician, gastroenterologist, क्योंकि psychological issues कहीं से भी आते हैं. So जब हम साइकोलॉजिस्ट हमें रिजॉल्व करने होते हैं प्रॉब्लम्स, तो हमको सब जगहों की सब एस्पेक्ट देखने होते हैं. जैसे कि एक गाड़ी किसी वर्कशॉप में आती है कि क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा, आवाज आ रही है, क्यों आ रही है, तो हर तरह के मैकेनिक्स देखेंगे उसको. तो इसी तरीके से सो लाइक हाउ वी वर्क इज लाइक वी हैव अ नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, एंड वी वर्क अकॉर्डिंगली.
तो हम लोग जब एज साइकोलॉजिस्ट जब हम काम करते हैं तो हम जैसे बच्चा पैदा होता है वहीं से ही उसका शुरुआत हो जाती है एंड अबाउट द इमोशनल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड कि इमोशनल हेल्थ की, क्योंकि जो पर्सनालिटी आज आप देख रहे हैं आपकी बनी हुई है, जो कुछ भी है आज आप कैसे अपने स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, आप दिल में ज्यादातर खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, या स्ट्रेस को लेने की आपको आदत पड़ चुकी है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है बचपन में ही हम लोगों को जो हमने सीखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपनी फैमिली में रह के, वो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इमोशनल हेल्थ. Now, to make it more interactive, I would request you, आप लोग मुझे आप लोग बताओगे what are emotions, आप कौन से emotions होते हैं, कुछ emotions के नाम आप बताओगे चैट बॉक्स में लिख के. Yes, emotions के नाम जो हम feel करते हैं, जैसे for I'll give you an example that love is one emotion. Can you name? Yes, very good. Happiness, anger. Yeah, very nice, Nivedita. Sanjay ji, very nice. Happiness or anger दिया आपने. And yeah, sadness is there, fear, yeah, hatred is there, loneliness, more people, yeah. Yes, very nice. Thank you so much, Neha, Sanjay ji, Nivrita, Azwar, Kamal. You know, it's very, very nice. Thank you for being interactive, and it's very nice. Lovely being with you all guys here. So I would also share some of my, you know, personal experiences dealing with children. You know, how parents need to handle, and how you know parents are the masters of their you know children's life. How it is there. So we will just come on to that. So 3 agar have surprise, you know, somebody bliss, yeah, Krishna, Ranjan, happiness, yes, so good, very good. So अगर हम इन सारे इमोशंस को ये सारे इमोशंस अगर हम इनको कैटेगराइज करें 3 कैटेगरी में, कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, कितने ह्यूमन बीइंग्स है, पूरे 7 बिलियन you know population of the whole world, चाहे वो आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, अर्बन पीपल हो, विलेज में हो, गरीब हो, अमीर हो, सारे लोगों में कोई जो 3 इमोशंस जो बेसिकली सब में इमोशंस होते हैं वो होते हैं, एक ये आप लोगों ने ठीक कहा, एंगर, और एक फियर, और एक लव. और बाकी जितने भी आप लोगों ने जैसे बताया, जैसे ब्लिस, हैप्पीनेस, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी ऑफ लव, राइट, और एंगर एंड फियर. सो 3 इमोशंस बेसिकली, जैसे बच्चे को अगर जैसे शुरू में जैसे वो भूखा होता है, जब आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे हैं, उसको हम सिखाते नहीं इमोशंस, ये बेसिकली सबके अंदर होते ही हैं, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर और हमारे अंदर होते ही हैं ये इमोशंस. तो जब उसको भूख लगती है उसको, और उसको देख रहा है, उसको लग रहा है देर हो रही है, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो उसको गुस्सा आता है और वो रोता है, तो एंगर हो गया, राइट. एंड जब उसको कोई अच्छी चीज लगती है, क्यूट लगती है, उसको कोई प्यार से देखता है, तो वो अपना किलकारियां मारता है, क्लैप करता है, बेबी, है ना, हैव यू सीन? So that is love, and we never taught our child to, you know, baby to clap. So clapping is somehow very very you know, it's a behavior, default behavior जो कि happiness को you know I mean exhibit करता है. So और है fear. Fear का मतलब आपको किसी चीज से डर लगना, घबराहट होना, something like that. We'll come on to this topic later and in a very big way. और this is a very important emotion, ये लोग आप ध्यान में रखिएगा fear का. So अभी अच्छा, ये जो सारे हमारे इमोशंस होते हैं, इन पे हम कैसे मतलब ये जो इमोशंस थे, सारा खेल जो आज हमारी पर्सनालिटी बनी हुई है, और हम कैसे अपने बच्चों को नर्चर करें. इन 3 इमोशंस हमारे अंदर भी हैं, ये 3 इमोशंस, और ये तीनों इमोशंस हमारे बच्चों के अंदर भी हैं. लेकिन हाउ डू वी, कैसे हम इमोशंस को यूटिलाइज करें कि हम जो है एक अपनी फैमिली को एक हैप्पी और प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव फैमिली बना सके. आर यू ऑल रेडी? Give me yes in the chat box if you want to listen to it. Do you want your family to become happy, productive, and progressive at the same time, and with little efforts? So here we say, as psychologists, what we do, we don't create magic. हम लोग यहाँ पे कुछ जादू नहीं करते हैं. यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को भी मालूम है, सब कुछ जो मैं बोलने जा रही हूँ, बहुत सारी चीजें आपको भी मालूम है, लेकिन सही वक्त पर
सही नॉलेज का इस्तेमाल करना, that is known as wisdom. The knowledge we all have, but application of the right knowledge at the right time is wisdom. And if it is followed by appropriate behavior, then it brings in results. Wow, it brings in results. Wow, very good. You all have got to learn. So हमें इस चीज को मास्टरी करने के लिए, तीनों इमोशंस को मास्टरी करने के लिए, एक वर्ड है आप लोगों ने सुना ही होगा, just what I'm saying, that we all have knowledge, but here why we are here to, you know, connect with with your wisdom. You have the knowledge, but we need to realize that it has to be converted into wisdom. बहुत सारी नॉलेज होती है, हम वीडियोस देखते रहते हैं, गूगल पे देखते हैं, व्हाट्सएप का आजकल नया शुरू हो गया है ज्ञान। हाँ, कहीं ना कहीं से कोई व्हाट्सएप आ जाता है जिसका कोई पता नहीं चलता और चोर कहाँ से आया, सही है गलत, पर हाँ बहुत सारे इनपुट्स हमारे चारों तरफ से, हमारे पास नॉलेज बहुत आ रही है, बट उस नॉलेज का करेक्ट एप्लीकेशन, सही नॉलेज का सही एप्लीकेशन राइट टाइम पे हो तो हमारी विजडम होती है। तो वी आर हियर। तो हमने एक वर्ड है जो हम सुना होगा सबने, इट इज EQ, दैट इज emotional quotient. Emotional quotient is something, you know, why that being aware, number one, being aware of our emotions, कि हमारे emotions है क्या, and then learning to handle them, that is our emotional. जैसे कहते हैं कि this person has got high emotional quotient. सही वक्त पे सही emotions का use करना, ऐसे नहीं कि आप रो रहे हो तो आप रोते ही चले जा रहे हो, टेंशन में हो तो आप अपने सिर पे जो भार रखा हुआ है, इतना प्रेशर आपने रखा हुआ है, सिचुएशन ओवर भी हो गई और आप सिर पे इतना भार रख के चल रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो, सो दैट विल नॉट बी, यू विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई EQ, आप लो EQ में आ जाओगे। तो उसी चीजों को कैसे हम डेवलप करें कि हमारे जो इमोशंस हैं, ये तीनों इमोशंस, इनकी कैसे हम इनको यूटिलाइज करें कि हम जो है इनको एनहेंस करें। एक और पॉइंट में यहाँ पे बोलना चाहूंगी, यू ऑल नो अबाउट IQ, यू ऑल नो अबाउट IQ, यस, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आप सब जानते हो, यस, या यू ऑल नो अबाउट इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, कि हम लोग एक इंटेलिजेंस के साथ बॉर्न होते हैं, कि हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है। जब हम लोग एज साइकोलॉजिस्ट उनके टेस्ट लेते हैं इमोशंस, वो आई मीन इंटेलिजेंस का, तो जनरली इंटेलिजेंस का टेस्ट लो आता है, लो इधर टू लो और एवरेज, अबव एवरेज, हाई एंड वेरी हाई, ये कैटेगरीज होती है इंटेलिजेंस की, जब हम इंटेलिजेंस के टेस्ट लेते हैं किसी बच्चों के भी और बड़ों के भी। तो हमने ये देखा है कि इंटेलिजेंस का जो आता है लेवल, वो जो होता है वो बहुत कम, जो जितना बचपन में होता है बड़े होके उसमें बहुत ही कम इजाफा होता है, हम कुछ भी करें बहुत। लेकिन जो इमोशनल क्वोशिएंट है वो हमारा जो बचपन में होता है, उसको अगर हम उसके ऊपर वर्क करें एज साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि पेरेंट्स हैव टू बी साइकोलॉजिस्ट, ऑल पेरेंट्स, बिकॉज साइकोलॉजी इज एवरीवेयर। मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ, दैट इज साइकोलॉजी। आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो, साइकोलॉजी। आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर रहे हो, दैट इज साइकोलॉजी। आप मार्केट में कुछ सामान ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजी की भी, वो आपको गलत चीज तो नहीं बढ़ा रहा, वो बोल रहा है कुछ, सो दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज देयर एवरीवेयर। सो हमें ये देखना है कि हम अपनी इमोशनल क्वोशिएंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एज साइकोलॉजिस्ट जब हम करते हैं इस पे काम टेक्निकली, तो दिस इज लाइक रीवायरिंग ऑफ द थॉट्स। सो इसको हम लोग इमोशंस पे, हम देखा गया है, रिसर्चेस शो कि जो इमोशंस होते हैं, ये इमोशन EQ जो है लाइफ लॉन्ग बढ़ती रहती है। इट इज अ प्रोसेस, जो ये नहीं था कि जो हमारा बचपन में था और आज भी है, हम जितने भी एज ग्रुप के हैं, 20s के लोग भी होंगे, 30s के, 40s, 50s, 60s, EQ continues to enhance. So this is a positive thing. This is a good news कि हमारी इमोशनल क्वोशिएंट ऐसा नहीं कि आज है, मेरे पास लोग आते हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है और मुझे तो गुस्सा ठीक नहीं होगा, अब मेरा तो गुस्सा आता है तो आता है, अब ये तो मेरा ठीक नहीं होगा, ये तो मैं हूं और मैं हूं तो मैं हूं, ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आता है गुस्सा तो आप, अगर EQ की अगर ट्रेनिंग होगी, अगर आपकी इमोशनल क्वोशिएंट, इमोशंस की स्ट्रेंथनिंग की, रीवायरिंग की, सो इट कैन बी हैंडल्ड। अच्छा, हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट you have to accept it, that you need help, you have to accept that you want to progress, that you want to learn. अगर आपके मन में ये है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता, मुझे चेंज नहीं होना, मुझे मॉडिफाई नहीं होना, तो आपको कोई भी नहीं कर सकता। लाइक एज in my clinic, many patients come, and
उनको लेके आते हैं लोग कोई ना कोई कि अब भाई इनको जो है इनको बात बात में टेंशन बहुत करते हैं ये, तो आप इनको देखो, इनको आपको इनको टेंशन कम करो। वो बोले नहीं मुझे तो कोई मुझे तो टेंशन नहीं होती, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे बचपन से आदत है टेंशन की, जब मेरे पेरेंट्स भी मुझे बेयर करते थे, अब मेरी वाइफ नहीं बेयर कर पाती तो मैं क्या करूँ। सो लाइक ये तो मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी माँ बाप ने भी मुझे एक्सेप्ट किया और अब मेरी कोलीग्स भी एक्सेप्ट करते हैं और मैं तो ऐसे ही हूँ। You know, people when they think that they don't want to change, it's difficult to change them. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है that we accept it कि yes we understand। और acceptance कैसे होगी, awareness से, which we are here to create awareness कि at least you should know कि क्या है। when we have knowledge, जब हमारे पास knowledge आती है, that opens the horizons of our mind, हमारे जो दिमाग के जो limits है उसको बढ़ाती है knowledge। तो हमें हर रोज पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छा सुनना चाहिए, कुछ नॉलेजेबल लोगों से बात करनी चाहिए, ताकि हमारे जो है नॉलेज बढ़ती रहे और अवेयरनेस हमेशा आती रहे। सो नाउ फर्स्ट इमोशन जो था हमारा जो दैट वाज एंगर, जो इनिशियली बच्चों में होता है, हम लोगों ने देखा। लेकिन द सेकंड बेसिक इमोशन इज एंजाइटी। द सेकंड बेसिक इमोशन इज एंजाइटी, एंड ये एंजाइटी एक ऐसा इमोशन है जो कि it is fear is there in its background, or you know it is present in both parents and children. Now what do you say? Anxiety is present in both the parents as well as in the children, you know, initially. So this is the main emotion, or also I would like to mark here, this is the main emotion. If not handled in a proper manner, it is the underlying cause of all the psychological disorders. Let me make it clear, all the psychological disorders. So it is such an important thing that हम लोगों को this week हम लोग इसकी training देते हैं under the category of techniques of mental hygiene. Have you heard this word mental hygiene? Yes or no? Come on, fast. Then I'll tell you, otherwise I'll proceed further. You want to know about my mental hygiene? Yes? Yes, few people? Yes, yes. Good. Chalo, I will take up. So when I'm going here, I am, going to various, it's not that कि people think कि एक psychologist पे आना है कि कोई पागल है या फिर कोई उसको कोई बहुत जरूरत है तब वो psychologist पे आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक अब नाउ इट्स एक्सेप्टेड कि हमारे जो इमोशंस है उसको हैंडल करना है, हमारे 3 बेसिक इमोशंस जो हमने देखा, अगर हम उसको हैंडलिंग करना सीख रहे हैं तो वो कोई पागलपन की बात नहीं है। दैट इज अ साइन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस इन फॉर डेवलपिंग योर इमोशनल क्वोशिएंट, so there is no harm. So similarly, I have been in SpiceJet Airlines, handling teaching the skills of EQ to the pilots, to the air hostesses, to the engineers. There was staff of 8,000 people, and I was there, for 3 years. And similarly, I've been in Infosys, I've been in TCS. So currently, I work in various corporate companies, and for enhancing their happiness, peace, productivity, and of course all based on the handling of EQ, emotional quotient. तो हम लोगों को बचपन से जैसे हमें सबको सिखाया गया, आप लोग और सब लोग नहा के आए हो, आज बैठे हो, हैव यू ऑल टेकन योर बाथ? आई एम श्योर, क्योंकि हम लोगों को फैमिली में सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है कि हमें नहा धो के आना है, अपने काम पे जाना है, फ्रेश होना है, सुबह नहाना है, धोना है, isn't it? That is all physical hygiene, कपड़े साफ पहने हैं, है ना, और चेंज करने हैं, अपनी बेड लिनन चेंज करना है, सफाई हमें सिखाई गई है हमको बचपन से। लेकिन were we ever taught mental hygiene? Yes or no? Were we ever taught mental hygiene? No, even I was not taught. Even I was not taught. Gradually, when I suffered myself, as a child, really I suffered. We were 4 siblings, and I really suffered from, that
तो somebody should be there. We were 4 children, so our mother would feed us food, खाना वाना दे देती थी, अपना वो पूछ लेती थी, बुक्स उसका होमवर्क कर लिया, बस उसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं होता था कुछ करने के लिए, बिकॉज उस समय पे क्या, देयर वर नो वॉशिंग मशीन्स एंड वी वर इन शिमला, वहाँ तो बहुत वॉक करना पड़ता था, जाना पड़ता, छोटी छोटी चीजें लेने के लिए, तो इंटरेक्ट करने के लिए टाइम भी कम था, 4 बच्चे थे हम लोग, तो पढ़ते रहते थे अपना, तो हम लोगों को कोई शेयरिंग नहीं थी, कुछ ज्यादा आपस में बच्चे शेयर कर लेते, पर मदर के साथ इंटरेक्शन बहुत क्योंकि कम हो पाता था, क्योंकि बिजी रहती थी, शी यूज्ड टू बी वेरी वेरी बिजी। सो लाइक कई बार जरूरत होती थी कि कोई बड़ा हो, हम लोगों में 2 साल का मेरे ब्रदर थे, 2 साल मेरी छोटी सिस्टर थी, 2 साल उससे छोटी, 2 साल छोटी थी, तो लाइक 2 years का गैप था, लेकिन आपस में इंटरेक्ट करते थे। पर मुझे अगर कोई अपने बारे में कुछ राय लेनी हो, कुछ अपने इमोशंस डीप शेयर करने हो, देयर वाज नोबडी, तो पता ही नहीं होता था कि भी कैसे करे और व्हाट इज मेंटल हाइजीन। तो वो हमारा क्या होता था, मेंटल हाइजीन समथिंग, जब नेगेटिव इमोशंस, फॉर एग्जांपल एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, किसी ने आपको कुछ कह दिया है ना, क्लास में कुछ कह दिया जो कि सही नहीं था, आपको कुछ गलत कमेंट पास कर दिया, या टीचर ने किसी गलत बात पे डांट दिया स्कूल में, तो क्या होता है कि हम बोल तो पाते नहीं उस समय, टीचर में हम छोटे होते हैं, अब रिटालिएट तो कर नहीं पाए, और उसके बाद हमारे मन में रहता है कि हमारी बेइज्जती हो गई, कुछ बच्चे हंस लिए, तो हमारे माइंड में वो सीन घूमता रहेगा, बार बार वो रोटेट करता रहेगा कि हाँ सारे बच्चे हंस लिए और ये बात गलत थी, मैम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैम को तो नहीं बोल पाए। पर होता क्या है कि आप घर आते तो आपको घर में किसी से बात करने के लिए, आप छोटे भाई बहनों को बता के क्या होगा, उनको तो समझ ही नहीं आएगी बात कि क्या हुई। सो लाइक मदर से बात करके होता है कुछ, तो क्या होता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईक्यू इंपॉर्टेंट करने के लिए, आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी टेक्निकल टर्म्स हियर, कि छोटी छोटी बातें, जब हमारा बच्चा स्कूल से घर आता है, इट इज कुछ पॉइंट्स होते हैं जब आपको बच्चे के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है, और वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, एक तो सबसे पहले बच्चा सो के उठ रहा है तब माँ को होना चाहिए, और बच्चा ऑफकोर्स जाए तो होना चाहिए, लेकिन स्कूल से जब वो आता है बच्चा, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ का होना बहुत जरूरी है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द वर्किंग पेरेंट्स हियर, वेरी बिग चैलेंज। Of course they are with grandparents, they are there and some caretakers are there, लेकिन जो मदर का रोल है वो कोई नहीं निभा पाएगा इस समय पे। तो इस समय जो मदर से जो EQ डेवलप हो रहा है बच्चे का, उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मदर नीड्स टू बी देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब बच्चा स्कूल से घर आ रहा है। ऑलवेज टेल, मेरे पास जो आते हैं जो बच्चे बहुत सारे एंक्शियस बच्चों को लेके आते हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि बच्चों को उस समय पे जरूर बच्चों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो अब क्या होता है बच्चों के साथ में, जब नेगेटिव माइंड, कुछ कुछ चीजें हैं बच्चों के माइंड में, वो वाली एक बात हो गई जो हमने करा कि टीचर ने डांटा, तो उसके बाद वो बात उसके मन में रही और वो सो गया, और रात को थोड़ा बहुत उसको घबराहट हुई, नींद नहीं आई, थोड़ा सा देर में नींद आई, थोड़ा सा रोया, वो नींद में कुछ सपना दिखा घबराहट वाला, फिर अगले दिन वो स्कूल चला गया, उसने शेयर नहीं की किसी के साथ वो बात, किसी को बताया नहीं। अगले दिन फिर कुछ उसके कोई कोलीग ने, किसी बच्चे ने पीयर प्रेशर में उसको धक्का दे दिया, कुछ किया, तो अब वो डबल हो गया, क्योंकि पिछली बात निकली नहीं है और नई बात आ गई। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, दिस इज लाइक पाइलिंग अप ऑफ नेगेटिव इमोशंस। तो ये जो होता है, दिस इज लाइक क्रिएटिंग डर्ट इन योर स्पेस, विच इज अ पायर स्पेस विच नीड्स टू बी फ्री। ये स्पेस अगर हमारी फ्री रहती है, उसमें जो होती है हमारी नॉलेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू विजडम। पढ़ाते तो रहते हैं टीचर्स, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उसमें पढ़ा तो रहे हो, लेकिन अब वो नॉलेज विजडम में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, बच्चे का माइंड तो भरा हुआ है ऑलरेडी, the stink is there, the child is got heaviness in the heart, the child feels like crying, and बच्चे को रोना आ रहा है कि भाई मुझे तो क्या कहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, मुझे तो रोना आ रहा है। तो उसको क्लास में, उसको क्या है, उसको पढ़ाई में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको पढ़ाई में, उसको आप लोगों को लग रहा है उसको पढ़ने में कोई फायदा हो रहा है, वो स्कूल जा रहा है वो। और कई पेरेंट्स जैसे बिल्कुल ऐसे करते हैं, नहीं स्कूल जरूर जाना है, छुट्टी नहीं लेनी है, स्कूल जरूर जाना है। उसको देखेंगे नहीं उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है, क्या है। Sometimes I would also request working parents to take some time off for their children, talk to them, connect with them। और ये कब करना चाहिए आपको, जब आपको, एक तो आपको रेगुलर लाइफ में आना चाहिए। अगर रेगुलर लाइफ में आप नहीं कर पा रहे, रूटीन में इसे नहीं कर पा रहे, तो देयर आर सर्टेन रेड फ्लैग्स। एंड व्हाट आर दी रेड फ्लैग्स? जब आपको पता लगना चाहिए कि योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दी
बैड नेगेटिव इमोशंस, और उसके नेगेटिव इमोशंस के मन में घर कर जा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली उसकी नॉलेज के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद हो रहे हैं। नॉलेज नहीं उसके अंदर आ पा रही, नॉलेज है भी तो विजडम में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, एप्लीकेशन नहीं हो पा रही, उसका हार्ट हैवी है और माइंड स्ट्रेस्ड है और उसको ठीक से नींद नहीं आ रही है और वो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो उसमें कुछ एक सिम्टम्स हैं जो हम लोग देखते हैं रेगुलर बच्चों में और कई बार हम लोग इग्नोर करने की गलती करते हैं। तो उसमें क्या है, सब कुछ इमोशंस ऐसे, कुछ चीजें ऐसे, कुछ सिम्टम्स हैं जो लिटिल बिट, फ्यू सिम्टम्स, सब तो नहीं हम बता पाएंगे यहाँ पे। तो रेगुलर स्टमक, एक बच्चा कहता है मेरे तो पेट में दर्द है और अक्सर ही बोलने लग जाता है मेरे पेट में दर्द है, मुझे नहीं जाना, क्योंकि उसको लगा है फिर नॉलेज आएगी और नॉलेज मेरे अंदर जाएगी नहीं, टीचर बताएगी, टीचर क्वेश्चन पूछेगी और मेरा मन अंदर से घबरा रहा है, मेरे दिमाग में टेंशन ही है और मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं कर पा रहा, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। बच्चा जो है उसको चिड़चिड़ा, इरिटेबल हो जाएगा और कई बार उसको हम देखा नौशिया हो जाएगा, कई बार ज्यादा बढ़ जाती है ये वो नेगेटिव इमोशंस, उससे नौशिया भी हो जाता है, वॉमिटिंग भी हो जाती है। और समटाइम्स अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे की जो हार्ट बीट है वो भी फास्ट हो जाती है और हम देखेंगे कई बार उसके जो हाथ पैर हैं, मसल्स हाथ पैरों के, वो भी अकड़ जाते हैं। और कभी देखेंगे बच्चों में अचानक से बैठे बैठे एकदम से पसीना आ गया उनको और थोड़ा सा उनको डिजीनेस जैसी आ रही है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन की बातें हैं जो एज पेरेंट्स हमें देखने हैं, जो कि हम लोगों ने बात की। एंजाइटी if not handled properly, it is the underlying cause of all the psychological disorders और mental disorders. So हमें कहीं ना कहीं अपनी जो फैमिली की जो मेंटल हेल्थ है और EQ है उसको हमें बढ़ाना है कहीं ना कहीं से। उसमें हमें ये भी देखना है कि हमारा बच्चा कहीं अकेला तो नहीं हो गया, लोनली तो नहीं हो गया और वो डिस्कनेक्ट तो नहीं कर रहा। कई बार उससे पूछो, नहीं मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बात करनी है, और हमेशा उसको गुस्सा चढ़ा रहेगा। कई बार उसको छोटी सी चीज बोलो तो चीजें फेंकने लगेगा, उठा के गुस्सा हो जाएगा बहुत ज्यादा। और अपने अगर कई क्लास में से भी कई बार रिपोर्ट आती है कि ये बच्चा तो किसी को मारने लग जाता है और गुस्सा आता है, या चीजें उठा लेता है, लोगों की चीजें फेंकता है, नुकसान करता है। तो ये सर्टेन symptoms जिससे हमें पता चलेगा कि that child needs to learn mental hygiene and his emotional quotient needs to be worked on। या तो पेरेंट्स बैठे हैं सपोर्ट सिस्टम से उससे बात करें, and talk therapies, we all can become psychologists for our children। you know what can हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते बताइए? we all can become psychologists, बस just being simple, उनके साथ टाइम पे कनेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे घर आ रहा है बच्चा, तब क्या खाना पीना खा रहा है तो आजकल सब पेरेंट्स देख लेते हैं, अच्छा खाना खा ले, न्यूट्रिशियस खाना खा ले, टाइम पे मिल जाए खाना, ये तो है। लेकिन रात को सोती टाइम भी ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को साथ में एक अच्छे से उसको एम्ब्रेस करके और उसको अच्छी फीलिंग से और उसको पूछ के कि उसके मन में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, अच्छी सी कुछ कहानी सुना के, सो दैट, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो जो भी हमारे साथ इमोशन होता है वो रात भर हमारे ब्रेन में हमारे में उसमें काम करता है अंदर। और वो इमोशन या तो अगर हमारा पीस का इमोशन है, लव का इमोशन है, तो वो सुबह उठ के एग्रेवेटेड होगा। अगर हमारा टेंशन का इमोशन है, हम टेंशन और गुस्से में, ये सबके लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, अगर हम टेंशन, गुस्से और या रात को क्राइम पेट्रोल और उस तरह के CID सीरियल देख के अगर हम सोते हैं, उस तरह का मिर्जापुर टाइप का सीरियल अगर हम लोग उस तरह की चीजें देख के अगर हम, जो कि रात को आजकल लोग रिलैक्स करने के लिए देखते हैं, वो चीजें देखते हो, तो आप ये सोचो कि रात को आप 5 से 8 घंटे जो भी सो रहे हो तो आपके दिमाग में वही चल रहा है। And morning you will be a stressed out person with low EQ and your mental hygiene would be affected very badly. So हम इस चीज को वो करने के लिए now कि हम how do you what is the what is the therapy that we use to resolve this the cause of mental hygiene और नेगेटिव इमोशंस अगर घर कर गए बच्चों के अंदर, उसकी पर्सनालिटी खराब हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, कंप्लेन हो रही है बच्चे के लिए और घर में भी वो परेशान हो रहा है, तो हम there is there is a term called neuroplasticity. So what is neuroplasticity? This is something our own ability, of mind to quickly unlearn negative habits and replace them with the positive thoughts and positive behavior.
So that is rewiring of the thoughts. तो हम लोग ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज करते हैं. There are technical terms, then various therapies जिससे हम लोग इसको rewiring करते हैं. एंड आप लोग भी पढ़ सकते हैं या फिर हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑलवेज हम लोग पेरेंट चाइल्ड के हम लोगों के पास सेशंस होते हैं, कुछ पेरेंटिंग के लिए कुछ सेशंस होते हैं, जनरल सेशंस होते हैं कि कई बार लोग प्रोएक्टिव होते हैं कि जरूरी नहीं कि बच्चे में प्रॉब्लम हो जाए तब आप आओ हमारे पास, इवन पहले से. There are certain awareness sessions, training sessions for parents on neuroplasticity that we conduct, जिसमें हम पेरेंट्स को अवेयर करते कि कैसे आप स्टार्टिंग से ही अपनी फैमिली में ही कैसे ही EQ हाई EQ को नर्चर करें ताकि जो आपका बच्चा है उसमें बच्चा और आप खुद भी उसमें वो आप हाई EQ में और मेंटल हाइजीन को कैसे आप डेवलप रख सकते हो. तो एक तो एंजाइटी की हमने बात करी, गुस्सा आ रहा है बच्चे को, ये हो रहा है, ये वन ऑफ द नेगेटिव इमोशंस. अनदर टाइप ऑफ एंजाइटी, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटीज यू नो. तो कुछ एंजाइटी जो भी हमारे पास व्हाटएवर लिमिटेड टाइम वी हैव, तो कुछ एंजाइटीज होती है दैट इज लाइक अ सेपरेशन एंजाइटी. सेपरेशन एंजाइटी, कैन एनीबॉडी टेल समथिंग, एनी ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ सेपरेशन एंजाइटी के बारे में कोई कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा? Have you heard about separation anxiety? I'm sure आपने सुना होगा. तो separation anxiety का कोई पेरेंट अपना शेयर करना चाहेगा कोई एक्सपीरियंस? Let me give you an example. For example, yeah, please, yeah. So, doctor, very recently I've noticed I had sent my daughter for a summer camp for 7 days. Okay. And on the third day, she was crying profusely, although the faculty and the setup was very good. And to the limit that she vomited also. And, you know, she was complaining of stomachache also. Next day, I happened to go and meet her. She spent a lot of time with me, and then she became comfortable. But she was still complaining the stomachache. So now I can relate, you know, Now you that. can- Yeah. Yes. You're Tarang, right? Yes. Yeah, Tarang. Thank you so much for sharing your, and may I know your child's age, Tarang? She's 8 years. 8 years, yeah. So that's what we अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया ये वाले जो है, दिस इज वेरी कॉमन एंड पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड. पेरेंट्स भी घबराते हैं. हम लोग तो देखो जब व्हेन वी बिकम मदर्स तो हमारा जो हार्ट है जो कहते हैं ना वैक्स का बन जाता है. द मोमेंट बच्चे की आंख में आंसू आ जाएंगे हमारे डबल आ जाएंगे, तो हम लोग भी घबरा जाते हैं. हमें यहाँ पे घबराने का नहीं है. तो वी हैव, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि हमारे पास अगर नॉलेज होगी तो हम नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करके और हम अपनी EQ को हम बढ़ा सकते हैं उसको. तो सेपरेशन एंजाइटी एज यू सेड कि आपके बच्चा कैंप में गया और उसको वहां पर ही और शी फेल्ट सेपरेशन एंजाइटी. तो ये एक सेपरेशन एंजाइटी का बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था आपने. सो रियली थैंक यू फॉर दैट. और ऐसे ही सेम आप बोर्डिंग स्कूल में जब आप बच्चों को डालते हो तो यही सेपरेशन एंजाइटी बच्चे फेस करते हैं. और एक और पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगी. जब हमारा एक ऑलरेडी बेबी, एक या दो बेबी है और यू नो एक नया बेबी आने वाला है हमारे पास, तो इन दैट केस जो ओल्डर बेबी है उसको ये एंजाइटी हो सकती है, सेपरेशन एंजाइटी. उसको लग रहा है कि अभी तक तो मैं ही था सब कुछ. एक बेबी है फॉर एग्जांपल, तो अब तक तो मैं ही था और मैं था या थी, तो अब उसके बाद नया बच्चा जो आ जाएगा वो जो है वो सारा जो पेरेंट्स का लव अफेक्शन सब उनका फर्स्ट अटेंशन सब कुछ वो ही लेके जाएगा और मैं तो निग्लेक्ट हो जाऊंगा. तो दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ सेपरेशन एंजाइटी जो कि अगर बच्चों में हैंडल नहीं होती तो बड़े होने तक के बच्चों में डिफरेंसेस बने रहते हैं. और सिबलिंग राइवलरी जिसको बोलते हैं, और बच्चे आपस में शेयर नहीं करना, मारना पीटना, और यू नो कभी भी वो साथ में जेल नहीं करते बच्चे. तो होना क्या चाहिए, स्मॉल वेरी स्मॉल टिप्स इज दैट, आउट ऑफ वन ऑफ वेरी स्मॉल टिप इज दैट कि बच्चों को जब भी हमारा कोई अगर नया बेबी आने वाला है तो बच्चे को अवेयर रखो ईच एंड एवरीथिंग. और जब भी न्यू बेबी आए तो उसको ये नहीं कि उसको भगाओ कि हाँ नहीं तुम नानी के पास या दादी के पास चले जाओ, अभी इसको से दूर रहो और ये नहीं, बाकी जो उसका काम हम करेंगे, तुम कुछ नहीं करना है. तो होना ही चाहिए बच्चे को शुरू से, जो बड़ा बच्चा है उसको शुरू से उसके बच्चे के जैसे 3 साल का 4 साल का छोटी छोटी चीजें, उसका डायपर जाके ये लेके आ जाओ उठा के, उसको डायपर को डस्टबिन में जाके फेंक दो, उसके लिए थोड़ा सा पानी वो लेके आ जाओ, कुछ लेके आ जाओ, कुछ छोटी छोटी चीजें कि बच्चों को साथ में इंटरेक्ट करवाना. जो न्यू बॉर्न बेबी और उसको हमें इंटरेक्ट करना, ना कि उसको बच्चे को दूर करना है, जिससे बच्चे के मन में ऐसा आ जाए कि इसके आने से इसने मेरी जगह छीन ली है, इसने मेरी स्पेस छीन ली है, इसने मेरी पोजीशन छीन ली है.
तो इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इसकी वजह से मुझे अब पूछते नहीं है, उसको ही पूछते हैं ज्यादा, उसी को गोद में बिठाते हैं। अब मुझे गोद में भी नहीं बिठाते। तो आपको टाइम टू टाइम ये भी देखना है कि जो बड़ा बच्चा है उसको कैसे, उसको भी टाइम दिया जाए, स्पेस दिए, वो ऐसे नेग्लेक्टेड फील ना करे। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, मेंटल हाइजीन उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, नेगेटिव इमोशंस उसके बढ़ते रहेंगे, इरिटेबिलिटी, एंगर, वो सब कुछ बढ़ता रहेगा और उसकी पर्सनालिटी धीरे धीरे खराब होती। होता क्या है कि नॉलेज तो हम पढ़ाते तो जाते हैं, स्कूल की बुक्स में तो उसके नंबर बेशक 9 अच्छे नंबर आ जाए, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं जो विजडम है, जो स्पेस है, अगर हम लोगों को लाइफ में प्रोग्रेस करना है, अगर हमें प्रोडक्टिव रहना है, अगर हमें अपने आप को हमेशा हर हाल में, क्योंकि लाइफ इज लाइक दैट, लाइक दिस, जैसे कि लाइफ में वो कहते हैं ना कि ईसीजी का रिपोर्ट देखी आप लोगों ने, यस, तो सबने ईसीजी की जो रिपोर्ट देखी, वो जैसी होती है वैसी हमारी लाइफ चलती है। तो लाइफ कभी भी ऐसी स्ट्रेट नहीं होती, चाहे वो राजाओं महाराजों की लाइफ रही, चाहे किसी की भी लाइफ रही, चाहे वो कितने बड़े राजा राजा कृष्ण देव राय या फिर अशोका या कोई कोई भी देख लो, या अलेक्जेंडर द ग्रेट या कोई हुसोएवर, तो अभी भी किसी की लाइफ भी ऐसी स्मूथ नहीं रहती है। एक तो वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमारे ऊपर नीचे रहेगी, और हमें क्या करना है लाइफ में, बैलेंसिंग, हाउ, ईक्यू, अपनी स्ट्रेंथन करके और मेंटल हाइजीन को अपना देख के, एंड देन लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। एंड जो हम लोग ये बात कर रहे थे कैसे बच्चों के साथ में एंजाइटीज को हम उनको हैंडल करा जाए, तो बच्चों के साथ जो हमें कनेक्ट करना है, वी हैव टू हाउ टू कनेक्ट विद द चिल्ड्रन, इट इज like giving them good quality time and very important, उनको क्वालिटी टाइम ही नहीं, फोन आपका बज रहा है साथ में, चलो बच्चे को पढ़ा रहे हो, चलो कहानी सुना रहे हो, एक फोन बज रहा है या सामने मैसेज टिंग 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 नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, आप बच्चों को कहानी पढ़ा रहे हो, अच्छा चलो थोड़ा सा तुम पढ़ लो मैं पढ़ ले रहा हूँ। नो, यू हैव टू बी टोटली ऑफ फ्रॉम गैजेट्स। सिंस अगर हम 2000 के बाद की बात करें तो हमारे लाइफ में जो गैजेट्स है, एक तरफ से पूरी हमारी लाइफ को हिला के रख दिया गैजेट्स ने, बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी है, बहुत कुछ, बट समहाउ अभी हम लोग उनको इतने अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाए, हम लोग स्टिल ट्रांजिशन में है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमें फैसिलिटीज और हैप्पीनेस देने के लिए, नॉलेज एनहांस करने के लिए चीज है, वो ऐसा तो नहीं, उससे हम अपने लिए, इट्स लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड, जो कि तलवार होती है जो नेगेटिविटीज को किल करने के लिए होती है, ऐसा नहीं कि वो हमारे ही गला काट रही है। तो डिवाइसेस कैन बी लाइक दैट, या तो हमारी प्रॉब्लम्स को काट ले, हमारी लाइफ इजी बना दे, और या वो हमारे ही गले पे चल जाए। तो अगर हम इस तरीके से उसका अनमाइंडफुल यूज करते हैं हम लोग, इसका गैजेट्स का, चाहे टेलीविजन है, चाहे वो हमारा टैब्स है, चाहे हमारे मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अगर हम फुल टाइम हमारे स्विच ऑन, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का चलता ही रहता है लैपटॉप, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक चल ही रहा है लैपटॉप, बार बार जाके देख रहे हो वहां पे, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। अगर आप, बिलीव मी, अगर आप नहीं भी होंगे ना तो दुनिया चलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि जब जब लोग चले गए तो लोगों को लगा कि हाँ अब दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है, तो ऐसा नहीं होता, दुनिया चलती ही रहती है। तो इतना टेंशन नहीं, गैजेट से हमें अपना स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स भी लिमिट करना है, और बच्चों को के लिए भी हमें स्क्रीन टाइम वो करना है। और कनेक्शन की बात अगर हम बात करें कि जो हमें बच्चों के साथ जब कनेक्शन रखना है, तो कैसा कनेक्शन रखना है, कनेक्शन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड इज समथिंग लाइक अ रोप। रोप समझते हो आप, रस्सी, तो एक रस्सी जो कि कनेक्ट करती है, जो बांधने वाली रस्सी होती है, तो जो रस्सी होती है, अगर उसमें 3 तरह के कनेक्शन हो सकते हैं रस्सी में, अगर हमें पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, एक तो होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इग्नोरेंट। तो पॉजिटिव कनेक्शन में क्या होता है कि हम एक अनदर थ्रेड ऐड कर रहे हैं उस कनेक्शन में, which is very smooth and which is making the strength of the parent and the child very high, और उससे बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, बच्चे की हैप्पीनेस बढ़ रही है। अगर हम बच्चे के साथ में पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम आई तो हमने उसको बताया कि कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को किसी ने बुली किया, धक्का दिया, या फिर उसके ऊपर हाथ उठाया, उसको धक्का दे दिया, गिर गया वो, और एक चीज है कि हम उसको वो आके रोया कि मुझे ये बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, तो आप उसको समझाओगे कि ठीक है, अब हम जो है चाहे वो आप शायद पड़ोसी का बच्चा या स्कूल में ही बचता है, तो समटाइम्स यू कैन स्ट्रेंथन, कि कोई बात नहीं, उस बच्चे को गुस्सा आया होगा किसी बात पे, और हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे या बच्चे से बात करेंगे, और वी विल ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन। और दूसरा एक नेगेटिव तरीका है कि नेगेटिव जो कनेक्शन है, वो नेगेटिव कनेक्शन, अच्छा उसने तुम्हें मारा, तुम्हें धक्का दिया,
कोई बात नहीं, अब उसको मिलेगा तो हम भी उसको आप क्या कर सकते हो, एक चीज आप उसके पेरेंट्स को जाके यल कर सकते हो, चिल्ला सकते हो उनके ऊपर, आपने बच्चे को समझाते नहीं, मैनर्स नहीं सिखाया आपने, समथिंग लाइक दैट कि हमारे बच्चे को उसने धक्का दे दिया एक चीज और गुस्सा दिखा दिया आपने, तो ये बच्चा आपसे सीख रहा है। आप ये समझिए जो आप कर रहे हो तो योर चाइल्ड इज ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू। दिस इज लाइक अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसमें क्या है, यू आर एडिंग अ थॉर्नी थ्रेड टू द रोप। वो जो रोप है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, उसमें एक कांटों वाली एक आप तार जोड़ रहे हो, जिससे आपकी और चाइल्ड की बीच की जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ब्लीड करेगी, और वो आप भी हर्ट होगे और आपका बच्चा भी हर्ट होगा लाइफ में, क्योंकि उसी तरीके से वो सिचुएशंस को आगे भी हैंडल करने वाला है, नेगेटिव इमोशन। एक तो हमने दिया पॉजिटिव कनेक्शन, नेगेटिव कनेक्शन, और तीसरा इग्नोरेंट। ऐसा हुआ कि बच्चे को ने आके बोला घर में, तो किसी को भी मतलब नहीं है, माँ अपने फोन पे लगी है बात करने के लिए, काम करने के लिए, फादर अपना देर से आ रहे हैं और सो जा रहे हैं, बच्चे को रो रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल, और उसकी प्रॉब्लम है, और आप समझ रहे हो जो मेंटल हाइजीन है उसकी कितनी लो हो रही है, or who is unable to express the emotion, and he has to again next day go to the school, report to the school, do his homework, and be like a good child at home। उससे क्या हो रहा है, उसकी जो है एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है, उसकी टेंशन बढ़ रही है, और उसका सेल्फ एस्टीम कम हो रहा है, क्योंकि अगले दिन दोबारा जाएगा, दोबारा बच्चा धक्का देगा उसको ये फियर हो गया, और वो दूसरे बच्चों से भी कटने लगेगा, और वो इग्नोरेंट कनेक्शन हो गया। तो 3 तरीके के कनेक्शन की बात करी हमने। पॉजिटिव कनेक्शन जो कि आपकी रोप जो है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में उसको और स्ट्रेंथन करेगा, नेगेटिव कनेक्शन जो उसको और कांटे वाली रोप से ब्लीड करेगी, इससे आगे की बच्चे की रॉन्ग लर्निंग हो जाएगी, और तीसरा इग्नोरेंट, जिसमें बच्चे का कनेक्शन ही नहीं हुआ पेरेंट और चाइल्ड। बड़े होकर बच्चे ऐसे निकल जाते हैं, पेरेंट्स को पूछते ही नहीं। आप लोग पूछते नहीं कि बच्चों को देखते हैं कि ये इस बच्चे ने तो बिल्कुल पूछ ही नहीं रहा, बाद में जाके इसको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने जो भी टाइम नहीं दिया उसको, बच्चे को जब टाइम चाहिए था उसको तब आपने टाइम नहीं दिया, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो लाइक वी कैन आल्सो सो ब्रिंगिंग अप एंक्शियस चिल्ड्रन जो है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये देखेंगे राइट फ्रॉम द, जब कंसेप्शन के टाइम से जो है मदर के अंदर जो प्रॉब्लम हो, अगर मदर स्ट्रेस्ड आउट है कंसेप्शन के टाइम से, तो क्या है, वो जो है जो हम कुछ रिसर्च, मेरे पास कुछ केसेस आते हैं जो एक, और वन ऑफ द जो कुछ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इफ यू हैव सम टाइम विल डिस्कस अबाउट, एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं ASD, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, जिसपे पहले लोग समझते थे कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ब्रेन का एंड ऑल, लेकिन जो अब करंट रिसर्चेस वगैरह इतने टाइम से रिसर्च हो रही है, इसमें क्या है कि जो बच्चा होता है ये कनेक्ट नहीं कर पाता अपने, जब वो स्कूल जाता है तो शुरू में उसका पता भी नहीं चलता, जब वो घर में ही रह रहा है, जब वो स्कूल में जाएगा या नेबर्स के पास जाएगा बच्चा ना, अगर उसको आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाता, वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे अगर आप उसको देख के अगर आप स्माइल करो, नॉर्मली आप बच्चों को देखो स्माइल करो तो क्या करते हैं, स्माइल बैक करते हैं। वो बच्चे जो होते हैं जनरली क्या होता है, स्माइल बैक नहीं कर पाते, या बहुत रेयर करते हैं स्माइल बैक, है ना, एंड दे गेट वेरी अपसेट इजीली, छोटी छोटी बातों पे उनको उनको गुस्सा आ जाता है, और वो अपने दोस्त नहीं बना पाते, जैसे ही स्कूल में जाते हैं वो अकेले अकेले रहते हैं, और उनको ग्रुप गेम्स नहीं खेल पाएंगे वो लोग, जैसे कोई ग्रुप गेम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तो इस तरीके से खो खो, पहले हमारे टाइम में एक गेम होता था, खो खो होता था एक गेम, वो नहीं खेल पाते वो लोग। वो क्या खेल पाएंगे, क्विज कंपटीशन होगा जिसमें अकेले बोलना है, और जो चेस वाली गेम है वो खेलना है, जो अकेले अकेले खेलने वाली चीजें वो कर पाएंगे वो, और बाकी वो नहीं कर पाते। तो ये जो है बच्चों को, लोगों को पता नहीं चलता, और वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आई वुड लाइक टू मार्क हियर, उनका IQ अच्छा होता है, तो चिल्ड्रन हैव गॉट गुड IQ, और नंबर उनके ठीक आते हैं क्लास में। तो पेरेंट्स जो है कंफ्यूज आते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर तो ठीक आ रहे हैं, और वो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन एज एन एज चाइल्ड ग्रोस अप, जब बड़ा होता है तो लाइफ में वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता लोगों के साथ सोशली, और वो आइसोलेटेड हो जाता है। तो वो ना, जब वो एक तो पढ़ाई के टाइम पे ही उसको प्रॉब्लम 9th-10th में, जब वो जैसे एडोलेसेंस में एंटर कर देता है, ये प्रॉब्लम तब पता चलती है, जबकि ये प्रॉब्लम ये 3 4 5 साल में ही पता चल जानी चाहिए बच्चों को, ठीक, माँ बाप को। और जब वो इतनी देर हो जाती है, बच्चा जब 9th-10th में आता है, जब वो प्यूबर्टी के चेंजेस बॉडी में आते हैं, तो एकदम से सामने आती चीजें वो कि लड़कियों से या लड़कों से अपनी क्लास के बात नहीं कर पा रहा, आइसोलेटेड है, उसका गुस्सा एकदम से बढ़ जाता है एंड ऑल। तो इस तरह के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि अगर उस केस को, वन ऑफ द केसेस आई वुड लाइक टू डिस्कस, ये वाला केस है
कि जो एक मेरे पास लेटेस्ट केस आया था, इसमें बच्चे की जो माँ थी, जो बच्चा जिसको ये ASD था, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो उसमें बच्चे के माँ के ऊपर प्रेशर था, 2 बेटियां थी कि एक सन होना चाहिए, पर बेटा होना ही चाहिए। तो शी कंसीव द चाइल्ड। तो पता नहीं था उस समय कि बेटा है या बेटी है, जो भी व्हाटएवर। तो लेकिन उसको लगा कि हाँ बेटा ही होना चाहिए, तो वो गए एंड उनके हस्बैंड ले गए उनको चेकअप वगैरह कराने के लिए। व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द 2 व्हीलर स्कूटर पे, तो शी जस्ट मतलब माइल्डली एक धक्का सा लगा, थोड़ा सा गिर गई वो। तो बट लेकिन उन्होंने चेकअप वगैरह कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नो इशू। बट शी गॉट सो स्केर्ड, शी गॉट सो अपसेट बाय दैट एंड शी गॉट सो एंशियस कि बच्चे को जरूर कहीं ना कहीं चोट लग गई, और ये मेरा बेटा ही था, इसको चोट लगी होगी कहीं ना कहीं, और इसको कोई प्रॉब्लम। इतनी एंग्जाइटी हो गई है उस टाइम से। एंड finally she came to me that boy is around now 26 and he's not able to, he's done the hotel management course and he was good, marks are always good, everything is good, but he's not able to take up the jobs. 25 साल का लड़का है और वो जॉब्स नहीं कर पाता। सो द थिंग इज दैट नाउ दे वर नॉट अवेयर ऑफ ASD, उन्होंने पहली बार नाम सुना था। सो नाउ दे आर, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। तो नाउ द मदर वाज सो टेंस्ड। इन दैट केसेस होता क्या है, अगर हमें बचपन में पहले से पता चल जाता है तो हम मदर्स की ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास बच्चे आते हैं। तो इट इज बिकॉज पेरेंट्स आर अ बिग सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन। तो मेंटल हेल्थ ऑफ पेरेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड से, तो here to nurture a family, जिस यूनिट में एक पेरेंट और चिल्ड्रन दोनों ही रहते हैं, तो उसमें सबकी इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है, बहुत हेल्दी होना चाहिए उसमें। तो उसमें सबकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं कुछ अच्छी वैल्यूज नर्चर करनी चाहिए बच्चों के अंदर, विच वी ऑल नो कि बुक्स के थ्रू, मॉरल स्टोरीज के थ्रू, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बच्चों की पढ़ानी चाहिए, जो कि सेल्फ मोटिवेशन का काम करते हैं, जिसमें हमें ऑनेस्टी सिखानी चाहिए, रिस्पेक्ट, करेज, और बहुत, और थोड़ा सा हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन चाहिए। आजकल क्या होता है, माँ बाप जैसे होते हैं, अच्छा इसने अच्छा काम किया, फटाफट रिवॉर्ड कर दिया, इसको गिफ्ट दे दिया फौरन, क्योंकि एक आध बच्चे होते हैं फौरन गिफ्ट करते हैं। लेकिन हमें थ्योरी लेनी चाहिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि बच्चे को बोलोगे अगर आपके मार्क्स इतने आए, या फिर आप ऐसे बिहेव करोगे कोई अपने दोस्तों के साथ, हमें कोई वो कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, आप अच्छे से खेलोगे, सबसे मिल के खेलोगे, तो वी विल रिवॉर्ड यू लाइक दैट, आफ्टर 2 months 3 months whatever। और कुछ अच्छी बात हो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, उसको इंस्टेंटली रिवॉर्ड नहीं करना है। और दूसरा, हमें बच्चों को कई बार कहते हैं ना, पुराने टाइम में पेरेंट्स होते थे हर बात पे डांट देते थे, तो अभी हम बोलते हैं हमें तो डांट पड़ती थी, हम क्यों डांटे अपने बच्चों को। तो हम क्या करने लगते हैं, इंस्टेड हम फ्लैटरी करने लगते हैं, नहीं नहीं तुमने तो बहुत ही अच्छा किया, इतना अच्छा तो कभी किसी ने नहीं किया। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली डिसप्रोपोर्शनेट आउट ऑफ। आपको रियलिस्टिक एप्रिसिएशन करना है बच्चों का, कि भाई ये ठीक है, ये आ गए आपके मार्क्स, अभी 10 में से आपके 7 नंबर आए, दिस इज गुड, बट आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे और तो इसमें आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, और अभी ये कमी रह गई आपकी, इसको कमी को पूरा करना है। तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक इन एप्रिसिएशन एंड नॉट बी ओवरबोर्ड के हर चीज में उसको वो कर दो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो फैमिली की मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है, पिच कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हम लोग आप लोग बात कर रहे हैं, तो हमारी जो बात करने की जो पिच है, अगर हम 0 to 10 का स्केल लेते हैं, तो हमारी 3.5 से 5.5 के बीच में ही होनी चाहिए जो भी बात है। गॉट माय पॉइंट। अगर 0 to 10 अगर हाई पिच है, लाइक चिल्लाना है, तो 10 है, अगर बिल्कुल चुप रहना है तो 0 है। तो हम जो बात करने की जो हमारी पिच है, जो वॉल्यूम है, वो 3.5 से 5.5 के बीच में रहे तो अच्छा है। अगर पेरेंट्स, इट इज सीन द रिसर्च इज शो, अगर हमारी बहुत आर्गुमेंटेटिव जहाँ पेरेंट्स होते हैं, बात बात में झगड़ा, बात बात में लड़ाई, तो बच्चों की दैट क्रिएट्स नॉट्स इन द ब्रेन ऑफ चिल्ड्रन, गांठें बन जाती हैं, दे सफर फ्रॉम very low mental hygiene, and they become stressed out children with high anxiety, which later on develop into psychological disorders, चाहे उसको आप डिप्रेशन कह लो, चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कह लो, मूड स्विंग्स कह लो, कुछ भी। सो जिससे उसकी पर्सनालिटी, हाई इंटेलिजेंस होने के बाद पर्सनालिटी उसकी क्यों खराब हो रही है, क्योंकि फैमिली में एनवायरनमेंट ऐसा है, पिच हाई है, चिल्ला के बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, और अच्छे वर्ड यूज नहीं करते। तो कम्युनिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड पेरेंटिंग, नर्चरिंग अ हेल्दी फैमिली, हाई EQ होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ा जो हम लोगों ने 3 इमोशंस की बात की थी, एंगर, एंग्जाइटी एंड लव, इन सब चीजों को अगर नेगेटिव इमोशंस हम ले, तो एंग्जाइटी का नेगेटिव, सब चीजों को कॉन्कर कर सकते हैं हम एक इमोशन से। कैन यू मेंशन दैट इमोशन इन द चैट बॉक्स?
out of 3, one emotion can conquer all the emotions, all the negative emotions, and create mental hygiene. What is that? Yeah. Very good, Neha. Very good, Neha. Thank you so much. Nivedita, thank you. And this is love. And love के बहुत सारे रूप हैं. सपोर्ट, लव का सपोर्ट होता है, कोऑपरेशन होता है, शेयरिंग होता है, कंपैशन होता है. तो हमें बच्चों को कंपैशन सिखाना है. नेचर के लिए कंपैशन, प्लांट्स के लिए कंपैशन, के प्लांट्स में भी लाइफ होती है, उनको ऐसे नहीं उखाड़ा जाता. जैसे हम छोटे थे तो हमें ये हमारे एक छोटा एक चैप्टर था कि जेसी बोस का, जो साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट, कि वो कहते थे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लांट्स को अगर करंट लगाओ तो वो कांप जाते हैं, कि प्लांट्स में लाइफ होती है. तब उन्होंने पहली बार जेसी बोस ने बताया था, इफ यू ऑल रिमेंबर. तो प्लांट्स में भी लाइफ होती है, तो हमें उनके प्रति भी कंपैशन रखना है, नेचर के प्रति. लेटर ऑन हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंसिंग की बात करते हैं, ऑल दैट. पहले हमें नेचर को प्यार करना चाहिए, एनिमल्स के लिए कंपैशन सिखाना चाहिए. ये नहीं इनको लात मार दी. बर्ड्स हैं हमारे चारों तरफ, जो भी है, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी है, सबके लिए हमें कंपैशन सिखाना है. तो दिस ऑल रिस्पेक्ट सिखानी है बड़ों के लिए. और अबव ऑल ये सारी चीजें कब होंगी? जब एज पेरेंट्स वी नर्चर देम एज रोल मॉडल्स. हमें बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना. ये नहीं उनको अच्छी अच्छी बातें बताते रहो और खुद तो अपने घर में जो एल्डर्स बने उनको नौकर को दे आओ, खाना दे आओ, और वो कुछ और बोल रहे हैं बार बार कि बुढ़िया पता नहीं क्या क्या तंग करती रहती है, बार बार ऐसे बोलती रहती है, बार बार तंग करती है ये. तो अगर हम ऐसे ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे, अनचैरिटेबल वर्ड्स बोलेंगे, तो बच्चे हमारे साथ भी वैसे ही करने वाले हैं, बिकॉज वी आर द रोल मॉडल्स फॉर देम. अगर हम उनसे जो अच्छा चाहते हैं, हमें पहले इमेजिन करना है कि क्या चाहते हैं हम बच्चों से. तो वही हमें भी वैसे ही डेमोन्स्ट्रेट करना है अपनी लाइफ में. अगर हमारी और कुछ आर्गुमेंटेशन की कोई बात है, हस्बैंड वाइफ की कुछ है, वी कैन गो आउटसाइड एंड टॉक, एंड व्हेन द चाइल्ड इज नॉट देयर, देन वी कैन टॉक समथिंग लाइक दैट, एंड वी कैन डिस्कस थिंग्स. या और डिस्ट्रेस करने का बहुत तरीका, क्योंकि सब कुछ हम पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, नॉलेज लेना सिखाते हैं, वीडियो से, बुक से, हर. लेकिन क्या हम अपने बच्चों को डिस्ट्रेस करना सिखाते? आर वी टीचिंग रिलैक्सेशन? Are we teaching daily relaxation? How many of you know daily relaxation? How many of you were taught daily relaxation? Were you taught? So we were not taught relaxation. तो हमें कुछ ना कुछ उनको स्किल सिखानी है, चाहे वो वोकल म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, स्टोरी राइटिंग हो, कुछ ऐसी चीजें जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो, when you want to unwind, चाहे 10 मिनट के लिए हो, आप 10 मिनट के लिए वो उसको स्किल दो, ताकि वो बच्चा बड़ा भी हो जाए. उसको टेंशन तो बढ़नी है. जब हमने ईसीजी का हमने ग्राफ देखा था, वो ग्राफ तो हमारा हो गई ऐसे लाइफ, लेकिन हमें कैसे एट द एंड ऑफ द डे 10-20 मिनट के लिए कैसे अपने आप को रिलैक्स करना है. तो हमें रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है बच्चों का, उससे क्या होता है, पैसिव लर्निंग जा रहा है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम बच्चों को एक अगर चीज सिखाना चाहे, अगर आप मुझसे पूछो एक चीज जो बच्चों को इनकलकेट करी जाए, तो दैट इज बिसाइड्स मेंटल हाइजीन इज दैट क्यूरोसिटी. कि बच्चों के मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन दो उनको, कि फॉर एग्जांपल ये घर के बाहर जो पार्क गंदा है उसके लिए क्या करना चाहिए. टेक सॉल्यूशंस फ्रॉम देम. उनसे बोलो आप अपने सॉल्यूशंस बताओ. 2 बच्चे हैं घर में, दोनों को बोलो आप सॉल्यूशन बताओ, क्या क्या चीजें होनी चाहिए. मे बी दे कम ऑफ सम न्यू आइडियाज जो हमारे दिमाग में भी नहीं होंगे. तो उनको उनके थॉट प्रोसेस को चलाना है. और ये हमारे लिए चैलेंज है, जो डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है हमारा, जिसमें खाली हम लोग पैसिव नॉलेज टेकर्स हो चुके हैं, कि हमें अपना माइंड कैसे चलाना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम उनको कैसे ये सिखाए कि कैसे वो अपने माइंड को चलाना सीखे, एंड ऑल स्क्रीन टाइम को हटा के, एंड हाउ दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन देयर ओन, ऑन द ऑटो स्क्रीन दे कम. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी हम देखेंगे एक चीज, कि हाउ वी लर्न टू रिलैक्स. तो इसमें हमने एक टॉक थेरेपी तो हमने कर ही लिया, कि दैट हमें रिलैक्सेशन के लिए कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कुछ हॉबी डेवलप करवानी चाहिए बच्चे के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी हैव टू बी लेस ऑन सेल फोन आवरसेल्व्स एज पेरेंट्स. टॉक थेरेपी, बच्चों से बात करते रहना, कनेक्ट करना, है ना. कम्युनिकेशन की पिच कितनी रखनी है, एंड एप्रिसिएशन एंड नॉट फ्लैटरी. एंड फूड ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम बच्चों को आजकल खाना तो खिला देते हैं सब पेरेंट्स के लाइक वी आर वेल ऑफ. जो हमारे पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे, उनसे हम लोग आज ज्यादा वेल ऑफ है, इजंट इट.
तो हम लोग क्या करते हैं, खाना जो हमें नहीं इतना ज्यादा मिला तो हम उसको ज्यादा ठूस देंगे. सम पेरेंट्स कम टू माय क्लिनिक एंड उसको खाना खिला के ब्रेकफास्ट करा के आए हैं, जैसे 2 घंटे बाद यहाँ पहुंचे, 1.5 घंटे बाद उनको फिर बोलेंगे क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब इनको पराठे लेके आए आलू के, अब इनको आलू के पराठे खिला रहे हैं. फिर उसका आधा 1 घंटा मेरे साथ रहे, फिर इनको अभी चिप्स दे रहे हैं, डॉक्टर साहब इनको भूख लगेगी, लगी ना हो. वो बच्चा मना कर रहा है, मुझे नहीं खाना. नहीं नहीं तुम खाओ, तुम खाओ, भूखे ना जाओ कहीं. हस्बैंड भी मना कर रहे हैं उनके, मत दो इसको, ज्यादा हो जाएगा. नहीं नहीं उसको भूख लगती है, ये रोज खाता है चिप्स, तो उसको अभी चिप्स. तो ओवर हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनको खिला रहे हैं. फूड ईटिंग इज नॉट, हमें उनको स्टफ नहीं करना बच्चों को, हमें उनको न्यूट्रिशियस फूड खिलाना है, टाइमली फूड खिलाना है. और अपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर नहीं हो जाती खाना खिला के, बट उनको सोचने देना है कि भाई देखो ये फूड खाओगे तो ये न्यूट्रिशन मिलेगा, और ये चीज, ये फास्ट फूड खाओगे, जो आप पिज्जा खाते हो, जो आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, ये खा रहे हो, इससे ये बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है. अब आपको क्या करना है, curiosity and ask and allow their brain to think. That is very important. तो अभी हम in the honor of parents and children, we all would like to do one activity, so in which will nurture peace and happiness in us, all of us. So are you ready for the activity? Yes or no? Are you ready for the activity? Are you there? Yes. Yes, Sanjay ji, Nandita, Dinesh ji, yes. Yeah, all of you are ready? So this is very important, and this is a very simple thing. I don't want to give you very technical terms. Being a psychologist, I'm sure कि मैं बहुत technical terms नहीं use कर रही हूँ, ताकि आप लोग day to day में अपनी life में अपनी जो quality है उसको improve कर पाए. So, तो इसके लिए अभी हम लोग छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे. उसमें हम आप लोग, आप सारे सीधे बैठ जाइए. आप लोग कोई लेटे बैठे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सिट स्ट्रेट ऑन अ चेयर with your back straight, yes, and your neck straight, and your feet on the ground, touching the ground, and your hands on your lap, on your thighs, facing the sky. Now you have to close your eyes and you have to inhale and exhale. आपको सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है. You have to feel that the fresh pious air is entering your left and right nostril, going upwards towards your brain, coming down to your navel point. जब आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट इन्फ्लेट हो रहा है, फूल रहा है, और आप जब सांस छोड़ रहे हो तो पेट अंदर जा रहा है. You are inhaling and exhaling. Now you're visualizing your peaceful self. जब आप बिल्कुल शांत होते हो तो कैसे होते हो? Create a picture in your mind. जब आप शांत होते हो और हल्की सी स्माइल आपके फेस पे होती है, वो पिक्चर कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ी पे एक छोटी सी हट के पास, आप जहाँ नदी बह रही है, आप वहां बैठे हो और आपके फेस पे स्माइल है, एंड यू आर इनहेलिंग and exhaling. Now next you are inhaling and holding on to the image of peace and exhaling out all your stress. Once again, you are inhaling the pious fresh air and holding on and exhaling all the stress. Now what you have to do, this you have to do it by 4 by 4 by 6, like 4 counts of inhalation. You have to come back now gradually. This you have to do 11 times after every 1.5 or 2 hours in a day. This will enhance your mental hygiene because it is through the breath that we are connected to the nature. So it is 4 by 4 by 6, 4 inhalation, 4 counts, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 is like holding, and exhalation is bigger. 1, 2, 3, 4, 5, and 6.
So this is the activity. If you do it after every 1.5, 2 hours, 7, 8 times in a day, and your children are also do it, this is a very simple, guaranteed technique for your mental hygiene, besides whatever we talked out here. And any questions, if you have, then you can, I'm ready. Hello, parents. Any question? Anybody like? So, ma'am, I have a query. Generally when children they are very young, between the age group of 2 to 3. So sometimes they are, they behave in a way that they are very stubborn, right? Right. So how do we, generally, because we all lead stressful life. So Yeah. we tend to not have that lasting patience, right? So, Right. and the child is very stubborn. So it just came out of nowhere in my mind. So how do you connect or, deal with such kind of a child? See, very, very, very important. This is here, how we deal with this, Sanjay ji. It's like कि जैसे बच्चा छोटा है, जब भी हमें किसी के साथ भी कनेक्ट करना है, for that matter, ये 2 साल का बच्चा है जैसे, तो जब भी हमें किसी के साथ कनेक्ट करना होता है, तो हमें उसी की एज ग्रुप में जाना होता है, उसी के साथ में आपको नीचे बैठ के, या वो टॉडलर है बच्चा, घुटने चल रहा है, तो आपको नीचे बैठ के ही उसके साथ में कनेक्ट करना है। आप कुर्सी पे बैठे हो, नीचे खेल रहा है या बेड पे खेल रहा है, नहीं, तो आपको कनेक्ट करना है उसके साथ आपका कनेक्शन नहीं है और आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप थके हुए हो। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने छोटी सी एक्सरसाइज करी है, ये आप अगर करके 11 करो, इट विल टेक आई थिंक 3-4 मिनट्स। सो और अगर आप आइडियली करो तो उसको 5 मिनट लगेंगे आपको ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि डीप ब्रेथ्स लेने हैं आपको इसमें, तो आपका माइंड ऑलरेडी रिलैक्स हो जाएगा। और आपको जब भी किसी के साथ कनेक्ट करना है, उसका बैठो, उसी के साथ, उसके टॉयज होंगे, उसके साथ बैठो, बात करो। अगर वो गिगल कर रहा है, आप वैसे गिगल करो, जैसे उसके साथ का एक समझो, एक जैसे बच्चा मेरे रे में जो आप उसके साथ वो करो, आपके साथ कनेक्ट करेगा, फिर आप जो भी कहोगे वो करेगा। ट्राई दिस। एक और सवाल है मैम। जी। कुछ बच्चे ना, दे आर एडिक्टेड टू दिस कार्टून, वाचिंग कार्टून्स एंड ऑल। हाउ डू वी मैनेज दैट? सी वही तो हम लोग कह रहे थे, The स्क्रीन way टाइम। you spoke about is lesser screen time. So to make sure that a child spends less and less time on his screen, on the screen. So how do we, क्या interventions करें so that a child is less addicted to all these things? Because these cartoons are they are designed in a way that children get addicted to it. I agree. Very good question, संजय जी। तो ये एडिक्शन तो है ही है, चाहे वो आजकल की डेट में चॉकलेट्स का एडिक्शन है, ये आजकल की देन है। और हमें तो चॉकलेट मिलते नहीं थे खाने के लिए, और अच्छे ही था, नहीं मिलते थे। और चॉकलेट्स है या फिर ये कार्टून्स है, ये आज की देन है। और क्योंकि अभी 2 साल में और भी बढ़ गया है, बहुत केसेस आते हैं मेरे पास इस तरह के, ये ऑनलाइन की पढ़ाई के चक्कर में बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन अभी थैंकफुली द पेंडेमिक टाइम लाइक स्टिल इज गोइंग ऑफ, वीनिंग ऑफ। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि ऑफलाइन वाली एक्टिविटीज बच्चे की पढ़ानी है, और उसके टाइमिंग रखने पड़ेंगे थोड़ा सा। जैसे हमें जैसे हम कहते हैं ना, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, परमिसिव पेरेंट्स, और इग्नोरेंट पेरेंट्स। तो अथॉरिटेरियनिज्म में अगर वार्मथ आ जाएगी, थोड़ा डिसिप्लिन, जब भी हमने देखा है जो बच्चे नॉर्मल होते हैं और बड़े अच्छे लाइफ में अचीवमेंट ओरिएंटेड बनते हैं, और अच्छी पर्सनालिटी, नॉर्मल पर्सनालिटी होती है बच्चों की, प्रोग्रेसिव, उनको देखा गया कहीं ना कहीं पेरेंट्स का डिसिप्लिन का फैक्ट भी था। वार्म थे, उनसे बात कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, पर उनके दिस फार एंड नो फर्दर। आपको जैसे ये आधे घंटे वॉच करना है, तो आपको आधे घंटे वॉच करना है, उसको 5-7 मिनट इधर उधर हो गया, स्विच इट ऑफ। अब नेक्स्ट टाइम ही विल नो के दैट था, इससे ज्यादा टाइम नहीं। क्यों होता क्या है, उनको चला के हम लोग बैठ जाते हैं अपना काम करने, कि चलो ये अच्छा है, तो थोड़ा सा बीमारी हटी और अपना काम कर ले थोड़ा सा, ये नहीं तो तंग करेगा हम। तो कहीं ना कहीं हम लोग, हमें उसकी टाइम टेबल बनाना है, जिसमें हमें उसका म्यूजिक या फिर उसकी पेंटिंग या उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज को एनहांस करना है, जिसमें उसको मजा आने लग जाए, वो अपने आप करने लग जाए। ये चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, कि वो पैसिव एंटरटेनमेंट में ना फंस के, कि हाँ उसको मजे आ रहे हैं, वो देख रहा है, खाली बैठा हुआ है, वहीं पे खा रहा है, चिप्स खा रहा है, और वो खाना भी वहीं पे उसको आ रहा है, स्क्रीन पे कभी खाना नहीं देना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हमें अपने पॉइंट्स बड़े स्ट्रिक्ट बनाने हैं,
थोड़े टाइम में कई बार पेरेंट्स को विलेन भी बनना पड़ता है, तो दैट इज ऑल राइट। तो हमें कुछ चीजों में से सोने का टाइम है, उठने का है, और ये स्क्रीन टाइम है, इसमें हमें थोड़ा सा डिसिप्लिनेरियन बनना ही पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you. I have a question, ma'am. What happens is once we are in a nuclear family, we can apply all this. हम लोगों ने discipline देख लिया, about pitch also we can handle, husband wife. But when you are in a joint family, things become complicated. आप बच्चे को एक चीज के लिए मना कर रहे हो, टीवी नहीं देखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मतलब as per of course जो भी आपने बताया है, we are applying all this. But घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी है, ग्रैंड पेरेंट्स ने कर दिया अलाउ, चलो ठीक है, नहीं बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, तो बच्चे के मन में डबल थॉट्स हो जाएंगे कि मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, सो हाउ वील मैनेज इट? देखो, दिस इज अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ योर्स। आपकी बहुत नेहाज बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, और ऐसा होता ही है क्योंकि वो बच्चा दिस वे द चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज्ड। तो कभी भी जब चाइल्ड को नर्चर करना होता है तो उसको हमेशा मास्टर वन ही होना पड़ता है, कभी भी, चाहे वो चाइल्ड हो या फिर कोई भी एनिमल हो, कुछ भी। दो लोग मास्टर्स नहीं होते, या तो एक हस्बैंड वाइफ में भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, खाने पीने के बारे में, घर के बारे में, होमवर्क के बारे में मदर इज इन चार्ज, बाकी चीजों के बारे में फादर इन चार्ज, तो ड्यूटीज ये। तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी इस समय बिठा के आप उनके साथ, जब चाइल्ड इज अवे, आप बैठ के उनको भी आपको डिस्कस करके ये बताना होगा, नॉट डेट कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, जो वो कह रहे हैं मानना है, उनको बताना है आपका जमाना और था, अब ये जमाना ये जो है, इसमें बच्चे को आप चाहते हो कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, तो ये चीजें आपको जो है अम्मा जी या पिताजी बाबू जी जो भी हैं, ये आप ये ऐसे करेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो बच्चा जो चिड़चिड़ा, पर्सनालिटी उसकी खराब है। आपको डिस्कस करना पड़ेगा बड़ों के साथ में भी। देखिए 20%, 25%, 30% कुछ ना हो, बिना डिस्कशन के नहीं होगा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ये कर रहे हैं, इनको करने दो, और बाद में इरिटेट होते रहते हैं। बट वी ऑल्सो, बिकॉज वो डिफरेंट जनरेशन के लोग हैं, और उनकी उनकी जो लाइफ है, आप इस लाइफ पे, वो लाइफ में 60+ या जो भी उनकी एज है, उस एज पे 55-60+ की एज में है जो पेरेंट्स, तो वो लोग चाहते हैं कि बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट करें, बड़े लोग तो टाइम नहीं दे रहे, तो कई बार ऐसा हो सकता है घर में, दिस इज वेरी कॉमन। पर इफ वी ऑल्सो कंटिन्यू टू कनेक्ट विद आवर पेरेंट्स एंड टेल देम टाइम एंड अगेन, इसका ये स्कूल टाइम है, इसका ये खाने का टाइम है, ये स्क्रीन टाइम है, ये आप इंश्योर, उनको भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो आप, कि हाँ ये आपको इंश्योर करना, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आई एम श्योर कि उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बच्चे में वो आएंगे, नहीं तो वो अपना जो चाहे, मतलब लेजे फेयर वाली पॉलिसी जो चाहे आ रहा है वो बोल रहे हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं, पेरेंट्स बोल रहे थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा सा भी ये खा लो, थोड़ा सा गेम खेल लो, अपना फोन दे दिया। फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने फोन दे देते हैं फिर बच्चों को, विच इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि इंटरनेट ऑन रहता है, आजकल स्मार्टफोन्स होते हैं, तो ये सब तो बहुत बड़ा चैलेंज है। बट हमें बिना सेल्फ अवेयरनेस, जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, communication with parents is also very important for us. Thank you. Thank you, Neha. Anybody? I'll be available, and I think Sanjay ji, I'll request Sanjay ji and Jiten ji to share my this thing number and website and number where you can put your queries, so that, and you can be available. I'm here based in Gurgaon in sector 15, so I'm based here. You can always connect with me, and I shall be available. It will be an honor and my pleasure to come connect with you and resolve your queries.